Hey guys, welcome back to my channel Tarot Tree of Life. I am a tarot and oracle card reader, angel therapist and life coach. And today's topic is requested topic by my viewers, that is he my soulmate, karmic partner or twin flame? So, I'm repeating again, is he my twin flame, karmic partner or soulmate? So this is a pick a pile reading. What you have to do is, there are 3 piles. You have to concentrate and meditate on any of these piles you feel more attracted to. Close your eyes, take a deep breath, and the pile which you feel most attracted to, you have to pick that. Why he or she has come into your life? This is a reading. This is a general timeless reading. So whenever you are seeing it, it will be valid. So whenever you are watching it, guys, it will be valid. Why this person has come into your life? Is he your soulmate? Is he your karmic partner? Or is he your twin flame? He or she is your twin flame. Okay. So concentrate on the first pile. It's a green tea bag on this. The second pile has a Colombian brew coffee. I love this flavor. And the third one is a herbal infusion tea, boosts immunity. We require at COVID-19 times. Yes. So showing you the 3 piles again. First is the Lipton green tea. The second one is Colombian brew coffee. And the third one is Santulya boost immunity tea. Okay. So now when you select the pile, we shall begin the reading. Hello all the lovely people of pile number 1. Here are your cards. Let's see what they say. First card is strength. We see an elephant here. As we all know that elephant has a huge amount of strength. The second card we have is weight of the world. The third card which we have here is the Empress card in reverse. Then we have 10 of cups, a happy family card. And then we have Ace of Pentacles card with us. So this card is from the Sacred Indian Tarot. This one is from the Starseed Oracle. And these 3 are from the original Rider-Waite Tarot deck. Okay, let's begin your reading. So this person has come into your life to give a lot of love and affection. Although the things right now may not be that glorious, but they are going to be really good in future, really fertile in future. As we see a happy family card, a content family card, the children are playing. 10 of cups is a very positive card. So this can relate to a marriage and having babies. So this person is definitely your soulmate, guys. Ace of Pentacles also indicates materialistic sides of our life. Then that means that this person is definitely your soulmate, because soulmates and the people living on earth directly connected for the purpose and normal life, like all of us, we are all a materialistic. So yes, this is going to be a good flourishing relationship as a soulmate, like a good relationship. You can also get married. But this relationship will have its own tough times. You might have to struggle a lot before getting married to this person. So you will require a lot of strength, guys. Okay, a strength is required for this relationship. But overall this relationship is going to be very, very good. And this is the card, weight of the world, boundaries, let it go if it's not yours to carry. So this card specifies that you should not take the burden of the world, right? You have to not take the burden of what society thinks, what other people are saying, what other people think about their relationship. You're thinking too much about that. Will we get married? Will we not get married? And if you're already married, whether this person is right. No, this person is right for you.
This person is going to be very loving and caring in this relationship. So do not worry guys, be happy, and this is your soulmate lover. And this was pile number 1 reading. Guys, I also offer personal readings, so you can message me on Instagram and avail a personal reading. All the readings are paid and the charges are mentioned on my Instagram page. So hey guys, welcome to all the people who have selected this pile with the coffee, with the Colombian brew coffee. So let's start your reading about whether this person is your twin flame, your karmic partner, or this person is your soulmate. Why this person has come into your life. Let's begin this general reading. I hope it resonates well with you guys. So whatever resonates, you can keep that, and whatever doesn't, you can leave that. So first card is the Tower card in reverse. The second card is the Star Keeper, Cosmic Ancestor, see the light by staying grounded. Then we have the High Priestess card. Wow. Then we have the Knight of Swords card. And then we have a 5 of Swords card. So we have 2 Swords card together here. And we have the good and the bad together here with the High Priestess. So why this person has come into your life? So guys, this person has come in your life to... So guys, this person has come into your life to give a balance. Balance as in this person is here for a journey, for a spiritual journey. As we see the High Priestess card, the Star Keeper card, and the Tower card. The Tower cards takes you out from a particular situation to the other, even if you don't want it. The Star Keeper here says the cosmic ancestors. So it is related to the ancestors and their blessings. The High Priestess in itself is a very spiritual card, and it is giving you a spiritual guidance, and that means that this person is definitely your twin flame. You will have difficulties in this relationship, maybe that you will not get married, but definitely you will have a lot of learnings in this relationships. Also, this person may be someone who swings his moods very easily, not very sure about this relationship, but you are connected to a higher spiritual level that you will overcome all the problems, but there will be no marriage. There can be marriage, but there are less chances of marriage as I can see here, right? So guys, this is a general advice, and I hope you resonate well with the reading. You can keep what resonates and you can leave the rest. Thank you. Hello to all the lovely people who have selected this Boost Immunity Santulya tea. Here is your reading, whether this person is my twin flame, or this person is my soulmate or my karmic partner. Why this person has come into your life. So let's reveal your cards, guys. So the first card is the Hanged Man, Tyag. The second card is the Earth School, Life Lessons, Soul Growth, Study Higher Learning. Then we have 6 of Cups card, which indicates a memory. Then we have a 5 of Pentacles card, which represents poverty. And then we have the Hermit card, which shows us a direction. So this card number 1 is from the Sacred Indian Tarot. The card number 2 is from the Starseed Oracle. And these 3 cards are from the original Rider-Waite Tarot deck. So let's interpret your cards, guys. So this person has been related to you from a long time now. Or if you haven't not met this person, or so this person has been related to you from a long time now, from a long memory, like he was your close friend, he was your schoolmate or college mate, right? He was already existed into your life and this love bloomed. The cards are showing something like that.
And if you are into this relationship, right guys, so you are going to have a little difficulties with this partner. This partner is here to teach something or the other in your life. This partner is here to teach you some lesson. Maybe this partner will come in your life and this partner will leave, right? So the Hermit also here signals that be careful in this relationship. All is not as it seems. This person is your karmic partner and is here to teach you a lesson. Yes, he or she is here to teach you a lesson, and you will definitely grow in your life spiritually, and you will have a lot of lessons from this person's also. But they are suggesting to be very careful. The Hanged Man. So in this relationship, your situation can be someone who has been stuck somewhere in the middle, right? You are not able to come out of this relationship. You are not able to leave this relationship. Even this person has left you. You are keep on thinking about this person. So you don't have clarity of your mind here whether I should have to be with this person or not. And then we have Earth School, life lesson, soul growth. So definitely this person has come here to teach you so many lessons. As we see, these all cards are interconnected to each other, and this person is definitely your karmic partner, and definitely here to teach you some lesson. नमस्कार दोस्तों, एक बारी आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल टैरो ट्री ऑफ लाइफ पे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए हैं। क्या वो ट्विन फ्लेम बनकर आए हैं, वो सोलमेट बनकर आए हैं, या कार्मिक पार्टनर बनकर आए हैं। ये एक पिकअपाइल रीडिंग है, तो जो आपसे मेल खाता है आप उसको रख सकते हैं, और जो आपसे मेल नहीं खाता आप उसको छोड़ सकते हैं। आपके सामने 3 पाइल दी गई हैं। आपको इन पाइल में से अच्छे से ध्यान लगा के, मेडिटेशन करके, कंसंट्रेशन से एक पाइल सिलेक्ट करनी है। तो इस पे एक लिप्टन ग्रीन टी का पैकेट है, एक कॉफ़ी का पैकेट है और एक चाय का पैकेट है। ठीक है, आप इन तीनों को ध्यान से देख लीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम की आईडी टैरो ट्री ऑफ लाइफ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान लगाइए दोस्तों इन तीनों पाइल्स पे। एक पे है लिप्टन ग्रीन टी का पैकेट, ठीक है, और बीच वाले में है कॉफ़ी का पैकेट, और तीसरे वाले पे है चाय पत्ती का पैकेट। ध्यान लगाइए, गहरी सांस लीजिए। जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आपको वो वाली पाइल सेलेक्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली पाइल है लिप्टन ग्रीन टी की, दूसरी पाइल है कोलंबियन ब्रू कॉफ़ी की। ये मुझे बहुत पसंद है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और जो तीसरी पाइल है वो है ये संतुल्य चाय की। आजकल कोविड-19 के टाइम पे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चाय पीनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला है लिप्टन ग्रीन टी, दूसरा है कोलंबियन ब्रू कॉफ़ी, ओके, एंड तीसरा है संतुल्य का इम्यूनिटी बूस्टर टी। तो अब आपने इन तीनों को अच्छे से देख लेना है। आगे आपको एक फ़ोटोग्राफ आएगा, उस फोटोग्राफ पे ध्यान लगाइए और सिलेक्ट कीजिए। तो स्वागत है पाइल नंबर 1 का। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करी है उनके कार्ड्स कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का, यानी ताकत का। जैसे एक हाथी के अंदर ताकत होती है, ये कुछ उस तरीके का कार्ड दिखाता है। स्पिरिचुअलिटी को भी ये डिपिक्ट करता है, महान शक्ति को ये डिपिक्ट करता है। उसके बाद है वेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार का बोझ उठाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है द एम्प्रेस का कार्ड, जो कि रिवर्स में आया है आपका। उसके बाद है आपका 10 ऑफ कप्स का कार्ड, एंड इसके बाद देखते हैं आपका है एक एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये वाला जो कार्ड है ये है द सीक्रेट इंडियन टैरो से। ये वाला जो कार्ड है ये है
द स्टार सीड ऑरिकल से, और ये जो तीनों कार्ड हैं ये हैं यूनिवर्सल राइडर वेट टैरो डेक से। तो चलिए देखते हैं कि आपके कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप में आप हैं, ये जो ज़िंदगी में आपके पर्सन आए हैं, ये बहुत ही खुशहाली लेकर आए हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर अभी खुशहाली आपको महसूस नहीं हो रही है तो आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप में काफ़ी खुशहाली रहने वाली है, काफ़ी फर्टाइल ये रिश्ता रहने वाला है। आप इससे एक फैमिली के अंदर भी जा सकते हैं, यानी कि अगर आप इस रिलेशनशिप में इन पर्सन के साथ हैं तो आपकी शादी भी ज़रूर हो सकती है, एक बच्चे हो सकते हैं, आपकी अच्छी एक फैमिली हो सकती है। 10 ऑफ कप्स बहुत अच्छी हैप्पीनेस का कार्ड है, एक कंटेंट फैमिली का कार्ड है, ठीक है। उसके बाद जो आपका कार्ड आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये हमारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें दिखाता है, यानी कि पैसा, घर, गाड़ी, यानी एक आम आदमी की ज़िंदगी बताता है, जैसे हमें हर किसी चीज़ से लग्जरी का अटैचमेंट होता है, ठीक है। तो एक ये नॉर्मल सोलमेट, ये जो हैं, ये आपके जो पर्सन हैं ये सोलमेट आपके कहलाएंगे, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं, आपसे शादी भी करेंगे, नॉर्मल थोड़ी ऊंच नीच भी होगी ज़िंदगी के अंदर, बट ओवरऑल जो होगा आपका ये रिश्ता वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये जो कार्ड है स्ट्रेंथ का, यानी कि आपको स्ट्रेंथ जुटा के अगर आप इस रिश्ते में रुके तो आप शादी तक जा सकते हैं। तो इन पार्टनर से आप भरोसा रखिए, इनके साथ आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट जाने वाला है। उसके बाद ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है उसकी आप बातों को ज़्यादा ध्यान ना दें। वेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार का बोझा उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने सिर्फ रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, उनकी बातों से आप ध्यान हटा दीजिए। आपके जो पार्टनर हैं आप उन पर ट्रस्ट कीजिए, पूरी तरीके से आप उन पर ट्रस्ट कीजिए, और अपने आप को और अपनी फीलिंग्स को आप बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। मेरे डिटेल्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, उस पर आप मुझे मैसेज कीजिए और हम फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल और टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज के थ्रू आपकी एक रीडिंग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आप खुश रहेंगे एंड इस रिलेशनशिप में आपको बहुत खुशहाली मिले, आप एकदम कंटेंट रहें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पाइल नंबर 2 ऑल द लवली पीपल। देखते हैं कि आपको आज कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। क्या ये पर्सन आपके लवर, सोलमेट हैं, कर्मिक पार्टनर हैं, या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रीडिंग। तो सबसे पहले सेक्रेड इंडियन टैरो से है हमारे पास द टावर इन रिवर्स। उसके बाद है हमारे पास स्टार कीपर, द टावर इन रिवर्स। देखिए ये जो कार्ड है एक सिचुएशन से निकलने को बताता है। स्टार कीपर है हमारे पास कॉस्मिक एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे एंसेस्टर से कुछ जुड़ा हुआ है इसके अंदर। राइडर विद टैरो डेक से है हमारे पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड, अच्छाई बुराई का कार्ड, साथ में किंग्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है हमारे पास जो रिवर्स के अंदर है। और उसके बाद है हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि हमारे पास 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। तो 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, हमें चलिए जानते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई प्रीस्टेस कार्ड के बारे में, यानी कि ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आए हैं आपको कुछ सिखाने आए हैं, ठीक है, आपको कुछ बताने आए हैं, आपको एक लाइफ के अंदर एक लेसन देने आए हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस तरीके का जो पर्सन है ये स्पिरिचुअल पाथ चूज़ करके जाता है, ठीक है। आप एक आध्यात्मिक रास्ते पे निकल चुके हैं इन पर्सन के साथ। ज़रूरी नहीं है कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी, लेकिन ये जो रिश्ता है ये बहुत लोगों का कुछ अच्छा कर जाएगा। आप साथ में जिस राह पे चलेंगे आप लोगों का अच्छा करते हुए चले जाएंगे। टावर बता रहा है कि ये इस रिश्ते के अंदर जो आप आए हैं, ठीक है, एक सिचुएशन से निकल के आप इस रिश्ते के अंदर आए हैं और इस सिचुएशन से आप निकल भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये पर्सन से आपकी शादी हो, बट इनसे आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। एंसेस्टर से जुड़ा हुआ है, यानी कि कुछ पिछले जन्म के कर्म भी इस बात से जुड़े हुए हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे बताता है कि जो अच्छाई और बुराई है, ठीक है, जो इस धरती पे है आप उसको बैलेंस करके चलेंगे। दोनों का जो पहिया है वो एकदम साथ साथ चलेगा, बैलेंस करके चलेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि डिफ़िकल्टीज़ बहुत आने वाली हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। आपके अंदर मनमुटाव भी रह सकते हैं, आपके व्यू पॉइंट कभी एग्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका जो इंटेंशन होगा वो हमेशा और लोगों का अच्छा करने के लिए होगा, यानी कि और लोगों को कुछ अच्छाई पहुँचाने का होगा और उनको कुछ अच्छे रिजल्ट देने का होगा।
उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड यहाँ पे बताता है कि कुछ इस रिश्ते के अंदर परमानेंट नहीं है, यानी कि ये जो रिश्ता है ये लंबे समय तक ज़रूरी नहीं है कि चले, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये आपके ट्विन फ्लेम है, डेफिनेटली ये आपके ट्विन फ्लेम है। वेलकम टू पाइल नंबर 3 दोस्तों। पाइल नंबर 3 में आपका स्वागत है। जिन्होंने संतुल्य बूस्ट इम्यूनिटी टी सिलेक्ट करी है ये उनकी पाइल है। तो देखते हैं कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट लवर हैं, या फिर ये आपके कर्मिक पार्टनर हैं और आपकी लाइफ में किस रीज़न से आए हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम अपना पहला कार्ड। सबसे पहला कार्ड है दी हैंग्ड मैन का, त्याग का कार्ड आया है सबसे पहला। उसके बाद आपका कार्ड आया है अर्थ स्कूल का, लाइफ की कुछ लेसन्स का, सोल की, आत्मा की ग्रोथ का कार्ड आया है यहाँ पे। उसके बाद आपका कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, यानी कि मेमोरी का कार्ड, यानी कि पिछले बातों से कुछ जुड़ा हुआ है आपका। उसके बाद आपका आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी पावर्टी का कार्ड, यानी कि थोड़ी मुश्किलों का कार्ड। उसके बाद है आपका हर्मिट का कार्ड, यानी कि अपनी लाइफ में कुछ सिखाने का कार्ड। अब वो जो सीख हैं अच्छाई अच्छे के लिए भी हो सकती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं उससे लाइफ में। हैंगमैन है, अर्थ स्कूल का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे ये तीनों कार्ड हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला कार्ड है अर्थ स्कूल का कार्ड। वो ये बता रहा है कि इस पर्सन से आप कुछ लेसन सीखेंगे, ठीक है। ये आपके कर्मिक पार्टनर हैं, ठीक है। सारे कार्ड्स का जो सेटअप है वो आपके कर्मिक पार्टनर का बता रहा है, यानी कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में आपको लेसन देने आए हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये अब आपके एक्स होने वाले हैं, कुछ इस तरीके की सिचुएशंस। या फिर ये कैसे आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही अटपटा सा है, ठीक है। पावर्टी का कार्ड है, यानी कि दुख का कार्ड है, मुश्किलों का कार्ड है, परेशानियों का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में ज़्यादा खुशियाँ नहीं होने वाली हैं, ठीक है। पर ये आपके पार्टनर फिर भी हैं, मतलब आप इस रिलेशनशिप में फिर भी रहेंगे। ये पास्ट की किसी मेमोरी से जुड़ा हो सकता है, यानी कि आप इससे कहीं कॉलेज में, स्कूल में कहीं मिले हो सकते हैं। और जो हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे बता रहा है कि किसी बड़े बुजुर्ग की जब आपने सलाह नहीं सुनी, ठीक है, इस रिलेशनशिप में आप आ गए, ठीक है, और आपको अब इसका भुगताना करना पड़ रहा है। ओके, तो हैंग्ड मैन है, आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं बुरी तरीके से। त्याग का ये कार्ड है, परेशानी का ये कार्ड है, मुश्किलों का ये कार्ड है, बट ये सब टेम्परेरी हैं। अगर आप चाहें तो आप इस रिलेशनशिप से निकल सकते हैं। ओवरऑल इस रिश्ते में आपको काफ़ी परेशान महसूस हो सकते हैं, आप काफ़ी घुटा हुआ महसूस कर सकते हैं, यानी कि हैंग्ड मैन जैसे हो गई, किसी चीज़ में अटके हुए आप हो गए उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये आपको बहुत ज़्यादा लेसन्स देने आने वाले हैं, बहुत सारी सीख सिखाने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। ये इस तरीके से आएंगे, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में वो गलतियाँ कभी फिर से दोहराने की गलती नहीं करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको आज की ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय।